वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? पढ़ाई कर रहे हो? टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर फॉर द डे, एंड एज यूजुअल अ स्मॉल रीकैप अबाउट येस्टरडेज लेसन। क्या पढ़ा था हमने? अबाउट मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। इट स्टार्टेड इन 18th century with the downfall of Mughal Empire. As Mughal Empire became weak, the other rulers gained independence. Hyderabad का पढ़ा, मैसूर, then Rajputs and Marathas, but they also started fighting among themselves to become more powerful. दूसरी चीज़, the Europeans have started coming to India, the Portuguese, British, French and Dutch. ये चार पार्ट्स आए थे इंडिया में, and slowly first the English defeated the Indian parts and then the European parts. Portuguese को हराया, French को हराया, and last the colonial power that ruled over India were British. So that is colonial period or British period. ये हमने कल समझा था that the British took over the power in India and how they exploited Indians and Indians became poorer day by day. सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने इंडिया का, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर विच वॉज फेमस एवरीवेयर. इंडिया वॉज फेमस फॉर ऑल दीज थिंग्स. दिस वॉज finished by the British and India became a very poor country. Once India was considered as the golden bird, सोने की चिड़िया, सुना है ना? लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर सब ख़त्म कर दिया and India became a poorer country under their rule. That was British period, modern period. Now we are going to read main sources of the history of modern India. हमें कहाँ से सारी information मिल रही है? ये modern period, British period जो हम पढ़ रहे हैं, from where we are getting all the information. जो आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो कुछ sources के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. There are certain difficulties for any historian who wants to reconstruct the history. आज के टाइम में अगर कोई हिस्टोरियन, जिसे हम कहते हैं इतिहासकार, if any historian want to reconstruct history, rewrite history of either ancient or medieval India, अगर वहाँ की हिस्ट्री लिखना चाहेगा, due to various causes, especially the distinct past and the long period and destruction of the historical material by the coming invaders, उसके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी. If any historian wants to write history, rewrite, history is already written, but if he wants to rewrite the history of ancient or medieval India, he is going to face many problems. क्योंकि बहुत पहले की बात हो रही है, डिस्टेंट पास्ट, एंशियंट इंडिया, और बहुत सारे जो सोर्सेज हैं ना वो नष्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. इन्वेडर्स आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए. मैनी यूजफुल सोर्सेज हैव बीन लॉस्ट टू अस, और बहुत सारे सोर्सेज हमसे खो भी गए हैं. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी हिस्टोरियन इफ़ ही वॉन्ट्स टू rewrite the history of ancient or medieval India. But this is not the case so far as the modern period is concerned. But if any historian wants to rewrite the history of modern period, downfall of Mughal Empire के बाद, so it's very easy for him. We have enough sources at our disposal as far as modern period of the history of India is concerned. हमारे पास बहुत सारे sources हैं जिन्हें पढ़कर, जिन्हें समझकर एनी हिस्टोरियन कैन रीराइट मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री. और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चीफ अमंग देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया. सबसे पहला सोर्स कौन सा है? द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर उस समय के सारे रिमेन्स सेफ रखे गए. एंड वेयर इज़ इट? It is in New Delhi. The National Archives of India was established in New Delhi in 1920. Underline करो, कब establish हुआ था? In 1920.
इट हेल्प्ड अ लॉट इन प्रिजर्विंग द प्रेशियस बुक्स. ये सब वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है. बहुत सारी बुक्स, प्रेशियस बुक्स, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स जो उस समय प्रिंट होते थे, लिखे जाते थे, वो सब वहाँ पर प्रिजर्व्ड है, विच हेल्प द स्कॉलर्स ग्रेटली इन राइटिंग हिस्ट्री. So today if historians want to write history, rewrite history, they can read those books and periodicals and archives there in Delhi and they can rewrite history. तो पहला सोर्स क्या है हमारे पास? The National Archives of India. Second, printed books. See, during ancient and medieval times, books were written, but they were handwritten. तो बहुत कम कॉपीज़ होती थी. हाथ से कितनी किताबें लिख लोगे? तो बहुत मुश्किल होता था. कॉपीज़ हाथ से लिखी हुई पत्तों पर, है ना, पेपर तो बहुत बाद में आया, तो उन्हें प्रिजर्व करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता था. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स. बट विथ इन मॉडर्न पीरियड हमें एक फैसिलिटी मिल गई. कौन सी फैसिलिटी? प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड. दिस इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड आवर लाइफ मच ईजी. पहले जो बुक्स हाथ से लिखी जाती थी, हैंड रिटन होती थी, प्रिजर्व करके रखना मुश्किल होता था, sorry, now they can be printed. So this is printed books. Because of the invention of the printing press during this period, a lot of books both in Indian and in foreign languages are available, which throw light on various aspects of the Indian life. बहुत सारी books लिखी गई, they were printed and they are preserved. So we can read those books and get much information about the life of the people, about politics, about rule, about economic, everything during that period. उन books से हमें पता चल सकता है. These books also throw a good deal of light on the progress made by men in different fields. क्या क्या developments हुए, that all is mentioned in that book, in the field of medicine, engineering, technology, art, literature, history, maths, music, dance and drama. बहुत कुछ, हर चीज़ पर बुक लिखी गई, प्रिंट हुई, लोगों ने उस समय भी पढ़ी, and they are available to us today also. So if we are going to read those books, we can get much information about all these things. By going through these books, we can compare ourselves with other people. आज अगर हम ये किताबें पढ़ेंगे तो उस समय की लाइफ के बारे में पता चलेगा. आज की लाइफ तो हम जानते ही हैं. सो वी कैन कंपेयर बोथ द लाइफ्स एंड गेट इंस्पिरेशन फॉर मार्चिंग फॉरवर्ड. हाउ दोस पीपल ट्राइड सो हार्ड टू डेवलप, टू प्रोग्रेस देमसेल्व्स, वेराइटी, सब कुछ जो उस समय का था, आज की लाइफ को हम कंपेयर कर सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं टू डेवलप एंड इन अचीविंग मोर एंड मोर इन डिफरेंट फील्ड्स. तो ये जो प्रिंटेड बुक्स हैं उस समय की, मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग की बुक्स आर अवेलेबल टू अस, सो वी कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज बुक्स. ये सेकेंड सोर्स हुआ. नाउ द थर्ड, तीसरा सोर्स क्या है? गवर्नमेंट/ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. जो भी उस समय के डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए. एंड वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व देम? रिमेंबर चिल्ड्रन, इन दैट मॉडर्न पीरियड ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया. सो ब्रिटिशर्स ने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, ऑफकोर्स प्रिंट होते थे बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, और उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व, बचा कर भी रखा. क्यों रखा देखो, अब हम समझते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ऑफकोर्स वी नो दैट, एंड सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री different parts played their parts. During British India, India was very large. आज वाला इंडिया नहीं था, और भी बहुत सारा इंडिया था, मतलब बहुत सारे कंट्रीज वर पार्ट ऑफ इंडिया. रिमेंबर ब्रिटिश पीरियड, पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया. व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, जब मुगल पार रूल कर रहा था, इवन अफगानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया. और भी बहुत सारे एरियाज़ जो अभी हमारे हाथ से निकल गए हैं, वो इंडियन एम्पायर वॉज अ वेरी बिग, मुगल्स के अंडर में और जो इतनी पार्ट्स रूल कर रही थी. सो इट वॉज अ वेरी लार्ज कंट्री एट दैट टाइम, एंड डिफरेंट पार्ट्स वर रूलिंग ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एट वन टाइम और द अदर. देखो कौन कौन रूल कर रहे थे. इन बंगाल द नवाब्स वर रूलिंग, अवध ऑल्सो द नवाब्स वर रूलिंग, सिंध वॉज रूल्ड बाय द आमिर्स, पंजाब वॉज अंडर द सिख्स, Western India was under the Marathas. Hyder Ali and Tipu Sultan were ruling in Mysore.
और भी बहुत सारे पार्ट्स थे, एंड दीज ऑल वर वेरी पावरफुल एट अदर टाइम्स. फिर इनके बाद कौन आए यूरोपियन पार्ट्स? द पोर्चुगीज, द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स. हेल्म ऑफ अफेयर्स का मतलब वेरी पावरफुल, इनके हाथ में सारा कंट्रोल था. पहले इंडियन रूलर्स थे, देन यूरोपियन रूलर्स हु रूल्ड ओवर इंडिया. All these rulers and powers exchanged documents with each other. लेटर लिखकर भेजना, ऑफिशियल लेटर्स जाते थे आपस में, इस राजा ने संदेश भेजा है या कुछ लिखकर भेजा है. तो ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं विच दे एक्सचेंज्ड, ऑल दीज पावर्स एंड रूलर्स एक्सचेंज्ड, ये भी तो हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं. दीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेल प्रिजर्व्ड, रखे हुए हैं अभी तक. अगर आप अलग अलग एरियाज़ के म्यूजियम्स में विजिट करेंगे, यू कैन फाइंड दीज देयर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेल प्रिजर्व्ड and are now easily available. You can read those documents there and they are very easily available to us. So these documents are there. Particularly, specially, कौन से documents? The British were much interested in preserving the official documents. Kings ज़्यादा interested नहीं थे, लेकिन कौन interested था? जो भी चीज़, जो भी लिखा जा रहा है उस समय का, किसने प्रिजर्व करके रखा? ब्रिटिशर्स ने. क्यों? देखो, नाउ विल नो द रीज़न. वाई? बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न एंड देयर ग्रेट यूजफुलनेस. ये बाद में काम आने वाले थे. कैसे? फ्रॉम देयर स्टडी दे कुड ईजीली नो हाउ डिफरेंट पार्ट्स डेल्ट विथ ईच अदर. आपस में उनके रिलेशंस कैसे थे. अगर नाराज़ है एक राजा दूसरे राजा से, तो वो उसी तरह का लेटर उसको लिखकर भेजेगा ना. एंड इफ़ दे हैड गुड रिलेशंस, वैसा लेटर जाएगा. तो ये लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स जो आपस में गवर्नमेंट्स भेजती थी, है ना, इनको सबको ब्रिटिशर्स ने प्रिजर्व करके रखा है. और इसलिए प्रिजर्व करके रखा है ताकि इन किंग्स के रिलेशंस को समझ सके, और उस हिसाब से वो उनके साथ डील करते थे. एंड हाउ अल्टीमेटली दे ओवर्ड पार्ट देम वन बाय वन. और इन्हीं रिलेशंस को समझकर व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू? दे डेल्ट विद दीज किंग इन द सेम वे. जो दो राजा आपस में दुश्मन थे, उनकी दुश्मनी को और बढ़ावा देते, एक के खिलाफ दूसरे की हेल्प करते, और फिर धीरे धीरे उन्हें कॉन्कर कर गए. दिस वॉज दैट दे ओवर पार्ट देम वन बाय वन. And not only the documents related to these kings, the documents relating to East India Company and the British government in England have also been well preserved. भाई एक टाइम ऐसा आया जब लोकल रूलर्स का रूल ख़त्म हो गया इंडिया में, ख़त्म इन द सेंस पालेस हो गया. एंड हु बिकेम सुप्रीम? द ब्रिटिशर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी. हाँ, सो उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा गया है. दे हेल्प अस इन नोइंग द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट. इन डॉक्यूमेंट से ही तो हमें समझ में आता है कि ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे वो क्यों आए थे. स्पेशली फॉर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस. हमारे जो सोर्सेज थे या रिसोर्सेज थे, जो प्रॉपर्टी थी, जो वेल्थ थी, उसको लूटने के लिए आए थे. एंड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हाउ दे लूटेड आवर कंट्री, ये सब इन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है. Thus these government documents are an important source of the history of modern India. तो ये जो भी government documents हैं, whether about the rulers, about the kings, their relations, or about the British government, the East India Company, जो कुछ भी उस समय के papers हैं, documents हैं, जो well preserved हैं, they help us in knowing the rule of that time. उस समय कैसे राजा राज करते थे, उनके आपस में रिलेशंस कैसे थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके रिलेशंस कैसे थे. एवरीथिंग इज़ प्रिजर्व्ड इन दीज डॉक्यूमेंट्स. तो आज के लिए बच्चों हम अपने लेसन को यहीं स्टॉप करेंगे. रेस्ट ऑफ द सोर्सेज विल कंटिन्यू टुमारो. टिल देन कीप रीडिंग.